Welcome to the next lecture of this series. So today I am going to discuss chapter 2 of your NCERT book, and I will start from electric potential and potential energy. So first of all I will discuss the basic idea about it. ये आया कहाँ से है ये सारी चीज़. एक बड़ी जनरल सी सिचुएशन आप कंसीडर करिए. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज and we have another positive charge Q naught situated at point A, and for example you want to bring this positive charge from point A to point B here at this position. For example, let us assume that the distance of this is RB and distance of this point from the original configuration or original charge capital Q is RA. So as you know, at whenever you place this charge Q naught in surrounding this capital Q, there will always be a force of repulsion on this charge. पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं. आप इसको कहीं भी रखें, इस पर हमेशा एक फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा, विच इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब आपको इसको इस पॉइंट ए से बी के तरफ लेके जाना है. इस पर ऑलरेडी एक फोर्स काम कर रहा है जो फोर्स इसको इससे दूर लेके जाना चाह रहा है. तो जब आप इसको एक से बी की तरफ लाना चाहेंगे तो यू हैव टू ओवरकम दिस इंटरनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe. That means you have to apply some external force, and whatever will be the nature of that external force, but you have to apply that. You don't know what is the nature of external force. It can be very rigorous force, it can be very complicated force, but you have to apply some force. So suppose I have applied a force external which is just opposite to the internal electrostatic force, and basically I am applying this force because I want to overcome this force. अगर ये फोर्स आप अप्लाई नहीं करेंगे तो ये चार्ज, ये वाला जो फोर्स है ओरिजिनल फोर्स, इसको दूर लेके चला जाएगा, पॉइंट ए से इधर लेके चला जाएगा, लेकिन आपको इसको लाना है ए से बी की तरफ. तो मान लीजिए आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं जो आपके इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैंसिल कर देता है, तो ये फिर इधर मूव करना शुरू कर देता है आपका Q नॉट, और ये किसी सिचुएशन पे आ जाता है यहाँ पर पॉइंट, मान लीजिए इसको पॉइंट P मान लीजिए. आपका Q नॉट जो है आप इसको ले आके रख देते हैं पॉइंट P पे, जिसकी डिस्टेंस जो है वो R है. आप इसको लेके कैसे आते हैं? आप इसको स्मॉल इंटरवल्स में लेके आते हैं. ऐसे छोटे इंटरवल आप इसके कर लेंगे, और मान लीजिए एक इंटरवल जो है वो उसकी डिस्टेंस जो है वो DR है. एक इंटरवल चलने में कितना वर्क करना पड़ेगा आपको? वर्क की डेफिनेशन आपको पता है. वर्क आपका क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट मैंने स्मॉल इंटरवल में डिवाइड कर लिया है, तो मैं एक इंटरवल की बात कर रहा हूँ, और जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल बी द वर्क. लेकिन चूंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो मैं इसको स्मॉल वर्क से डिनोट करूँगा. व्हेन यू वांट entire work in this journey from point A to B, you have to integrate this, and this will be equal to from A to B F external dr. Now you have add up all the possible segments, small segments in which you have divided your path. आपने उन सभी को ऐड कर लिया और आपने अब टोटल वर्क जो है वो कैलकुलेट कर लिया. As you know, F external is exactly opposite to the electrostatic force. So you can write it as F external is equal to minus F electrostatic. Minus sign is for opposite nature. So your work will be written as W will be equal to A B F electrostatic dr. This will be the line integral of the work done, and this work will be stored within the system in the form of potential energy. You will write it as delta U, because you always take potential energy in terms of difference. आपने difference लिया है ना, A से B तक जाने में कितना energy में change आया, that change is represented by delta U. So we also know that electrostatic force is represented as Q into E. Here your charge is Q naught. So you can also take it as minus Q naught E dr from A to B. Ab if now you are imposing a condition, if Q naught is unit
पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर ये आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा फिर? उस केस में आपका ये हो जाएगा, क्यू नोट की वैल्यू 1 हो जाएगी। इन दैट केस वर्क विल बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस ई डी आर, सॉरी ई डी आर. This is the line integral of the electric field, or this is the work done by electrostatic field. Okay, so I will use this definition throughout this chapter, so please go through this very seriously. And after that I will define potential. Now what is potential? Potential difference हम पहले define करेंगे. Potential difference. So potential difference का मतलब ये है, जैसे पॉइंट आपके दो थे A और B, आप इस चार्ज क्यू नोट को ए से उठा के बी की तरफ लेके गए थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वर्क डन इन बिटवीन दैम डिवाइडेड बाय द सैम्पल चार्ज क्यू नोट, एंड दिस विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. वी ए बी मीन्स वी बी माइनस वी. Okay, so this is the basic physics behind this, and I will use this formula V equal to W upon Q naught throughout the chapter, so please remember this. And as you can see, the unit of this potential will be equal to joule per coulomb, or you can say volt. There is a very famous unit of potential difference or potential, whatever you name give it to, that unit is basically volt. Okay, now how would you calculate it? Now you understand what is potential. It is basically the work done and moving a charge from one point to another point. But how would you calculate mathematically? आपके पास कोई फॉर्मूला उसके लिए होना चाहिए ना. आप उसके लिए फॉर्मूला कैसे ड्राइव करोगे? तो हम इसके लिए ड्राइव करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस. बेसिकली डिफरेंस मैं इसको कहूँगा, पोटेंशियल की बाद में करूँगा, अभी पोटेंशियल डिफरेंस है. तो एक पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में आप एक दूसरे चार्ज को लेके आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप मैथमेटिकली क्या फॉर्मूला लगाओगे ताकि उसको आप कैलकुलेट कर सको. उसके लिए हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं. तो पहले की तरह अज्यूम कर लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल क्यू. आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आना चाहते हैं. बिल्कुल पहले की तरह अजम्पशन होंगी सारी की सारी. यहाँ पर वो चार्ज ओरिजिनली रखा गया था, फिर आप इसको यहाँ पर लेके आए, फिर आप इसको यहाँ पर लेके जाएंगे, फिर आप इसको यहाँ पर लेके जाएंगे. तो मान लीजिए आप जब इसको देखते हैं तो ये चार्ज यहाँ पर था और आप इसको इस तरफ लाना चाह रहे थे, और स्मॉल इंटरवल डी आर छोटे छोटे इंटरवल आप कर लेंगे इसके, डी आर सेगमेंट के आप उसमें डिवाइड कर देते हैं, बाद में उन सबको ऐड कर लिया जाएगा. मान लीजिए जिस टाइम आपने इसको देखा है इसकी डिस्टेंस आर है, आपने इसको लाना शुरू जो किया था वो आर ए से किया था, और ये जो आखिर में पहुँचेगा वो आर बी पे पहुँचेगा. तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, वर्क इज़ वॉट, वर्क इज़ माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डी आर, एंड फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन. अब V क्या होता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी ए बी. चलिए V बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले वर्क निकाल लेते हैं. वर्क कितना हो जाएगा, F की वैल्यू आप रखिए, F हो जाएगा 1/4πε0. यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये चार्ज एक Q1 है, ये Q2 है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2, और यहाँ पर जब ये यहाँ पर है तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, वो r² है डी आर. सो यू कैन राइट इट एज Q आपका कैपिटल Q कांस्टेंट है, स्मॉल q भी कांस्टेंट है, 1/4πε0 ये भी कांस्टेंट है. इन सब को बाहर ले लीजिए जितने भी कांस्टेंट हैं, कैपिटल Q स्मॉल q, और अंदर A पर डिस्टेंस कितनी है RA, B पर डिस्टेंस कितनी है RB, और ये डी आर ऊपर बचा और नीचे r² हो गया. ओके, सो नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट इट. 1/r² का जो इंटीग्रेशन होगा, 1/r² का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा -1/r. ये बेसिक रूल है इंटीग्रेशन का, आप इसको देख लीजिएगा अपनी किताबों में. तो ये बचा आपका -q नोट डिवाइडेड बाई 4πε0, ये अलग रखिए बॉक्स में, और इसका इंटीग्रेशन हो गया -1/r, और लोअर लिमिट है r है और अपर लिमिट है rb. सो ये हो जाएगा आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी q नोट 4πε0
अपर लिमिट रखिए इसकी जगह, माइनस साइन तो बाहर चला गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. दिस इज योर वर्क to move a body or to move a charge from point A to B. As you can see, this work is only depend on RA and RB. यानी कि इसको ये जो है सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है. पाथ आपने कौन सा लिया है उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दैट मीन्स इसका एक मतलब ये भी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आर द कंजर्वेटिव क्वांटिटीज़. अब आपको पोटेंशियल चाहिए VAB, सो इट विल बी इक्वल टू W/Q0. सो यू विल राइट इट एज, आप इसको W वाला एक्सप्रेशन को Q0 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर का Q0 नीचे के Q0 से कैंसिल हो जाएगा. ये बचेगा 1/4πε0 1/RB माइनस 1/RA. ये बेसिकली फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स और टू मूव ए चार्ज बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स. ओके, नाउ यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी कि दो पॉइंट के बीच में एक चार्ज को मूव करा गया है और इस चार्ज को मूव करने में जो पोटेंशियल रिक्वायर है इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं यहाँ पर. दैट पोटेंशियल इज बेसिकली इक्वल टू VAB इज बेसिकली इक्वल टू 1/4πε0 1/RB माइनस 1/RA. अब पोटेंशियल क्या होता है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VAB, या लोग इसको डेल्टा V भी लिख देते हैं, डेल्टा V भी लिख देते हैं डिफरेंस बताने के लिए. अब पोटेंशियल क्या होगा, अगर ये पॉइंट A, ये वाला जो पॉइंट A है, ये यहाँ से शिफ्ट होकर इन्फिनिटी पे अज्यूम कर लिया जाए तो RA कितना हो जाएगा, RA आप जो है इन्फिनिटी मान लीजिए और RB को आप जो है इक्वल टू मान सकते हैं अब R के, या R' या RB ही रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इन दैट केस यानी कि अगर ये इन्फिनिटी से B तक आए तो आप इसको क्या लिखेंगे 1/4πε0 1/RB माइनस 1/R इन्फिनिटी. अब 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है तो अब आप इसको V इन्फिनिटी B की जगह सिर्फ V से लिखेंगे और आप इसको लिखेंगे 1/4πε0. सॉरी, चार्ज भी है यहाँ पर, सॉरी चार्ज है, वो ओरिजिनल चार्ज तो है ना यहाँ पर रखा हुआ जिसके प्रेजेंस में इसको लाया जा रहा है. ये हो जाएगा Q 1/R, B को अब R ही रहने दीजिए और ये हो गया 0. तो ये आपका पोटेंशियल कितना आ गया, ये आ गया 1/4πε0 Q/R. तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, सॉरी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है. पोटेंशियल के लिए आपको एक पॉइंट इन्फिनिटी पर शिफ्ट करना होगा और पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो स्पेसिफिक और दो फाइनाइट पॉइंट्स के बीच में मूव करने की वजह से होता है हमेशा. ओके, नाउ ये हो गया कि आप किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे. इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ आती हैं जिनको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस. इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस. अब इक्वी पोटेंशियल, इक्वी से वर्ड समझ में आ रहा है कि इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस. ये होती कैसे है, मान लीजिए आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने आपको बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके किधर होंगी, वो हमेशा बाहर की तरफ होती हैं, ऐसे ऐसे. पॉजिटिव से हमेशा बाहर, और अगर नेगेटिव होता तो हम बाहर अंदर की तरफ होते हैं, लेकिन होती इसी तरह परपेंडिकुलर ही होती हैं हमेशा. ठीक है, अब आप मान लीजिए इस चार्ज से यहाँ पर खड़े हुए हैं A पर और इस A की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए R है, चार्ज की वैल्यू Q है. तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो मैंने ऊपर बताया है. वे चार्ज भी है डिस्टेंस भी है तो कोई ना कोई पोटेंशियल आ गया. मान लीजिए पोटेंशियल आता है V. अब आप एक दूसरा पॉइंट लेते हैं B और इस B की भी जो डिस्टेंस है वो ओरिजिनल चार्ज से वो R है. अगर इसके डिस्टेंस सेम है और चार्ज तो A के लिए भी वही है जो B के लिए है तो इसका पोटेंशियल भी कितना रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये भी V ही रहेगा. इस तरह से आप एक पॉइंट और C ले लीजिए, उसकी डिस्टेंस भी R रखिए
और उस पर भी जब आप पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो वो v के इक्वल ही आएगा। इस तरह से यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकते हैं जिनकी डिस्टेंस आप सेम रखेंगे तो इन सब पे पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सरफेस ड्रॉ करते हैं जिसकी डिस्टेंस ओरिजिनल सोर्स से सेम हो, उस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा और सेम होगा, ज़ीरो नहीं होगा, सेम होगा, वी 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 होता चला जाएगा। तो चूंकि ये सरफेस हर पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल रखती है तो आप इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। अगर आपने डिस्टेंस को चेंज कर दिया, मान लीजिए आप आर की जगह 1.5 आर पे चले गए, तो 1.5 आर पे जो सरफेस बनेगी उस पर सारी पे पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा, लेकिन इन दोनों सरफेसेस पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं है आर वाली सरफेस पे और 2r वाली सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो एक जैसा रहेगा, नहीं। एक सरफेस जो सर्कुलर सरफेस है इस पे जो सेम डिस्टेंस पे है उस पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, तो हम इनको इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है ये जो सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, मैं इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दूंगा, लेकिन अभी आप यहाँ से लॉजिकली भी देख सकते हैं कि जो एंगल है आपका ये 90 डिग्री बन रहा है हमेशा। तो अगर मैं इसको और क्लियरली बनाऊँ आपके लिए कि भाई एक चार्ज था, स्मॉल क्यू ले लीजिए, इसके सराउंडिंग में बहुत सारे पॉइंट्स लिए गए और हर पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो सेम रखी गई। अब जाहिर बात है इससे सर्किल ही बन के आएगा, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो सरफेसेस आएंगी वो सर्कुलर आएंगी। हो सकता है मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो सर्किल ना बने, लेकिन ये सर्कुलर सरफेसेस बनेंगे हमेशा। ये सारी की सारी सरफेस, मान लीजिए ये सरफेस ए है, ये सरफेस बी है, ये सरफेस सी है, उससे सरफेस डी है, तो वी इस सरफेस ए पे जो भी पोटेंशियल होगा वॉट एवर नंबर इज, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि नंबर कितना है, लेकिन जो भी नंबर होगा, मान लीजिए V1 है यहाँ पर ही, तो V1 ही रहेगा इस पूरी सरफेस पे। इसी तरह से VB अगर इस पे है तो VB ही रहेगा, लेकिन VA विल नॉट बी इक्वल टू VB। ऐसा नहीं है आप इसे बी पे जंप करेंगे तब भी पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा इस सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जाती है वो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जाती है चार्ज से, तो अगर आप बाहर की तरफ इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो जाहिर बात है इस सर्किल को वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। इसकी भी तकरीबन वही प्रॉपर्टीज़ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताई गई थी कि जैसे वो इंटरसेक्ट नहीं करती उसी तरह से ये भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब ये बात तो समझ में आ गई कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है। ये एक ऐसी सरफेस है जिसके हर पॉइंट पे आपका पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मान लीजिए ये एक सरफेस है, इसके दो पॉइंट हैं ए और बी, एक ही सरफेस पे दो पॉइंट है, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल मैं V मान लूँ तो यहाँ का पोटेंशियल भी V ही होगा, यानी कि पोटेंशियल एट A इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एट B विच इज़ इक्वल टू V। अब मैंने बताया आपको V में एक फॉर्मूला पढ़ाया था E, अभी पहले EdR इज़ इक्वल टू V इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस में आता है, सॉरी। अच्छा जी, अगर आप इस इंटीग्रेशन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन dv इज़ इक्वल टू माइनस ई डी आर, सो यू कैन से ई विल बी इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब इस फॉर्मूले को देख लीजिए ज़रा, यहाँ पर माइनस ई डॉट डी आर इज़ इक्वल टू है डी वी है चेंज इन पोटेंशियल for equipotential surfaces, for equipotential surfaces dV, that is change in potential V2 minus V1, it is always zero। चेंज तो होगा ही नहीं, जैसे आपने देखा ना V और VB है तो VA माइनस VB कितना आएगा, V माइनस V ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि एक सरफेस से पोटेंशियल में चेंज तो होता ही नहीं, पोटेंशियल सेम ही रहता है। डी वी ज़ीरो हो गया, इसका मतलब ये है कि ई डॉट डी आर इज़ ज़ीरो। भाई जब माइनस ई डॉट डी आर इज़ इक्वल टू डी वी था और डी वी अब ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ई डॉट डी आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, आपको याद है जब दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता था हम ये कहते थे कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू अदर। उसका रीज़न ये है, जैसे ये ई डॉट डी आर है, इसको आप लिख सकते हैं ई डी आर कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब कॉस थीटा 90 डिग्री ज़ीरो यहाँ से आ जाएगा और ज़ीरो जो वैल्यू होती है वो कॉस 90 की होती है। इसका मतलब ये है कि थीटा विल बी 90 डिग्री। वही बात मैं भी कह रहा था कि एंगल जो होगा ए और डी आर का मतलब है ये जो सर्कुलर सरफेसेस आपने बनाई है इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द
इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब इसके बाद मुझे एक दो डेरिवेशन करने हैं जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी कहे थे। आपको याद है डाइपोल की मैंने बात करी थी एक जगह। तो डाइपोल क्या होता है? डाइपोल का मतलब होता है कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे। तो मैं दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस ले लेता हूँ। एक मैंने चार्ज ले लिया है प्लस क्यू, एक मैंने चार्ज ले लिया माइनस क्यू। इनके बीच का डिफरेंस मैंने ले लिया है 2L। तो इसकी डायरेक्शन माइनस वाले से प्लस की तरफ होती है और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है दोनों में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस। ये आया था वेक्टर फॉर्म में। स्केलर फॉर्म में आप लिखेंगे तो आप इसको सिंपली Q × 2L लिख देंगे। ओके, ये हमारा एक डाइपोल था और इस डाइपोल की वजह से मैंने इसकी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट किए थे, अगर आपको याद हो। अब मैं इन्हीं डाइपोल की वजह से इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करूँगा। देखिए वो कैसे करते हैं। एक डाइपोल अज्यूम करिए प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। आप एक पॉइंट P पर यहाँ पर खड़े हैं, या इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे आपकी बुक में जिस तरह से दिया है, माइनस क्यू उधर ले लीजिए और प्लस क्यू उधर ले लीजिए। हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी बुक में इस तरह से तो आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और एक पॉइंट P यहाँ पर है। ओके, अब हमने इसकी लेंथ मानी होती है 2L। तो आधी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? ये L हो गई। और ये आधी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? ये L हो गई। ये इसका सेंटर है। वो सेंटर से पॉइंट P तक की डिस्टेंस को आप अज्यूम कर लीजिए R है। तो प्लस Q से P तक की डिस्टेंस कितनी बच गई अब? R - L। ये डिस्टेंस जो रह गई वो R - L रह गई। और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी माइनस वाले चार्ज से P तक की डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ तक तो R है, ये L और ऐड कर दीजिए इसमें, R + L हो जाएगी। अब मैं इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करूँगा। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, V+ मैं इसको लिख देता हूँ, इट विल बी इक्वल टू 1/4πε0। क्या फॉर्मूला पढ़ा है मैंने अभी ऊपर? भाई V होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। स्क्वायर नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस है। तो चार्ज कितना है प्लस पे? प्लस Q है। और डिस्टेंस कितनी है इसकी? R - L हो गई। इस तरह से नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा? 1/4πε0। चार्ज कितना है? -Q। अब यहाँ पर माइनस का साइन लेना पड़ेगा आप। ये बात यहाँ वहाँ और इसमें फ़र्क था। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में दोनों जगह चार्जेस का मैग्नीट्यूड लिया गया था, जो कि वो वेक्टर क्वांटिटीज़ थी। इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर चार्जेस का साइन मैटर करेगा। आप ये बात याद रखिए। तो आपको साइन भी लेना पड़ेगा। अब आप जो है नेट पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि प्लस का कंट्रीब्यूशन और माइनस के कंट्रीब्यूशन को जो है आपने ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसको V1 और V2 कह दीजिए, और आप फिर इनको कह दीजिए V1 + V2। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कोई नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो V1 कितना है? 1/4πε0 Q/R - L प्लस V2 कितना है? 1/4πε0 -Q/R + L। तो माइनस का साइन प्लस के साथ आके माइनस कर देगा। Q/1/4πε0 दोनों जगह है, ये कॉमन आ गया। Q भी दोनों जगह है, वो भी बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बचा? 1/R - L माइनस, ये माइनस यहाँ आ गया, R + L। यहाँ पर भी अजम्पशंस वही हैं कि R जो है वो L से बहुत ज़्यादा है। तो जब कहीं भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको यूज़ कर लेंगे। अब आप इसमें आगे बढ़िए ज़रा। आप इसको लिखेंगे Q/4πε0, डिनोमिनेटर का LCM ले लीजिए, R - L R + L, और इसको जो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, इसकी इसमें और इसकी इसमें, R - L। ये आ गया आपका Q/4πε0 R + L -R + L, ब्रैकेट आपने ओपन कर लिया, डिवाइडेड बाई A - B A + B R² - L²। ठीक है, R से R कैंसिल हो गया, तो L और L कितना हो गया? ये 2L हो गया। तो आप इसको लिख देंगे, अगले पेज पे लिख लेते हैं। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया? Q/4πε0 बाहर था, अंदर रह गया था 2L और नीचे था R² - L²। चूँकि मैंने बताया था R बहुत बड़ा है L से, तो R² और भी कम हो जाएगा, तो वी कैन निगलेक्ट L को जो है आप निगलेक्ट कर देंगे। तो ये बचा V = Q/4πε0 12/R²। अब आप इसको लिख लीजिए, चार्ज को अंदर ले जाइए तो बाहर रहा 1/4πε0 Q × 2L एक साथ लिख लीजिए अपॉन R²। Q × 2L को मैंने अभी बताया डाइपोल मोमेंट कहते हैं इसको, तो उसको हमको कहते हैं P होता है, Q ×
2L। तो पोटेंशियल कितना आ गया, ये हो गया 1/4πε0 P/r²। दिस इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल पोजिशन पे है। एक्सियल पोजिशन में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं एक लेक्चर में, ठीक है। इसकी एक्सियल पोजिशन पे पोटेंशियल इतना होगा। अब इक्वेटोरियल पोजिशन पे देख लीजिए, फिर से एक डाइपोल कंसीडर करिए, Q माइनस Q, इनके बीच का सेपरेशन वही पहले की तरह 2L है। मिड पॉइंट ले लीजिए, मिड पॉइंट से जो लाइन जाती है आप उसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। मान लीजिए आप यहाँ पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये सेंटर हो गया आपका R, ये पूरा 2L था तो ये L हो गया और ये L हो गया। ये डिस्टेंस आपने मान ली Z है, ये डिस्टेंस आपने मान ली R है, और ये डिस्टेंस भी आपकी कितनी रहेगी, ये Z ही रहेगी। अब यहाँ पर वेक्टर वाला चक्कर नहीं है कि उसके कंपोनेंट रिजॉल्व करने, वो कुछ नहीं करना है आपको। तो आप जो है प्लस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल देख लीजिए, V1 कितना हो गया 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस Z है इस बार। V2 कितना हो गया 1/4πε0 चार्ज माइनस Q, मैंने कहा माइनस का साइन लिया जाएगा पोटेंशियल में, हमेशा स्केलर है ये, तो Q/Z हो गया। अब आप नेट पोटेंशियल देख लीजिए, V1 प्लस V2 हो गया, और V1 की वैल्यू है 1/4πε0 Q/Z, V2 की वैल्यू है 1/4πε0 माइनस Q/Z। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/Z, माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा 1/4πε0 Q/Z। दोनों इक्वल हैं तो ये 0 आ गया। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होता है ड्यू टू अ डाइपोल, वो ऑलवेज 0 होता है हमेशा। थैंक यू।